I know the one who started this church personally. वो कह रहे हैं मुझे पता है किसने इस सेविकाओं को शुरुआत करी। I want you to ask the same question. Do you know the one who started this church personally? ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहते हैं क्या आपको पता है कि इस कलीसिया को किसने शुरुआत करी? You are in somebody's house and you don't know who is the father of that house. आप किसी घर में बैठे और आपको पता नहीं इस घर का मालिक कौन? We need to know. If you come into my house, you need to know that's my house. अगर आप इनके घर में आते हैं आपको पता होना चाहिए वो इनका घर है। If you think that that's Pastor Rocky's house, you will never see him there. अगर आप सोचेंगे इनके घर में आके वो पास्टर रॉकी का घर है तो आपको वो कभी नहीं मिलेंगे वहाँ पर। Right? ऐसा ही है? And he और वो gave his life उन्होंने अपना जीवन दिया for this ministry. इन सेविकाओं के लिए। He even died उन्होंने वो मर भी गए for this church. इस कलीसिया के लिए। And his name is और उनका नाम है Jesus. यीशु। It's not Kamei who started this church. ये पास्टर कमाई नहीं जिन्होंने इन सेविकाओं को शुरू किया। It's not the name of the people. लोगों का नाम नहीं। It was Christ and it is Christ. वो यीशु थे और यीशु ही है। He is also not the founder but also the foundation of this church. वो सिर्फ शुरुआत करने वाले नहीं लेकिन नींव भी इस चर्च की वही है। आमीन। I wanted to see every one of you today actually. आप सबको देखना चाहते हैं आज। But I was a little disheartened when I hear that everyone is not here. तो पास्टर को थोड़ा बुरा लगा जब उन्होंने देखा कि हर कोई यहाँ पर आज नहीं है। I'm talking about the members of the Rehoboth Church. जो रेहोबोथ चर्च के सदस्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। Nevertheless, you all are here, पर फिर भी आप सब तो यहाँ हैं। and I'm thankful to God for तो हम that. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके लिए। Amen. I want to talk about church a little bit. हम बात करना चाहेंगे थोड़ा बहुत कलीसिया के बारे में। In Hindi, it is rightly translated. The word church is rightly translated, correctly translated. जब हिंदी में चर्च को बोलते हैं कलीसिया, That is straight from the original word. वो शुरुआत में जो बिल्कुल साफ शब्द है उसके लिए है। The Bible is written in Greek, बाइबल लिखी गई है ग्रीक में, some portion in Aramaic, अरामाइक में भी, some portion in Hebrew. हिब्रू में भी, इब्रानी में भी। You will not find the word church in the original Bible. अगर आप देखते हैं शुरुआत की बाइबल में कहीं पर भी आपको चर्च शब्द नहीं दिखाई देगा। You will not find the word church in Greek Bible. आपको इब्रानी किताब में, इब्रानी बाइबल में भी वो शब्द नहीं मिलेगा। It is found only in English Bible. सिर्फ अंग्रेजी की बाइबल में ही आपको चर्च शब्द नजर आएगा। But now today we know when we use the word church, लेकिन अब हमें पता है कि हमें चर्च शब्द कब इस्तेमाल करना है। we are talking about the people of God हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों की coming together and worshiping जो साथ Jesus. में आके यीशु की आराधना करते हैं। So there is nothing wrong using that word. तो कोई बुराई नहीं है उस शब्द का इस्तेमाल करने में। Today you will find the word church in the Bible. The word church, not ecclesia, the word church. अगर आज आप देखेंगे चर्च शब्द बाइबल के अंदर, We will find them in the Bible. आपको बाइबल में वो शब्द मिलेगा। But you will not find that the word church in the original Bible. लेकिन अगर आप शुरुआत में जो असली बाइबल है उसमें आपको चर्च शब्द नहीं मिलेगा। I'm not going to the history why. हम इतिहास में नहीं जाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, That is not important. वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। But you need to know a little bit about the church. लेकिन आपको थोड़ा बहुत चर्च के बारे में पता होना चाहिए। We don't know the meaning of the church. हमें चर्च का मतलब ही नहीं पता, But we know the meaning of ecclesia लेकिन हमें कलीसिया का मतलब जरूर पता है or congregation. या कांग्रीगेशन का मतलब। Now there are two kinds of churches. दो तरह की चर्च होते हैं। One is universal church. एक जो यूनिवर्सल चर्च होते हैं, It's not universal in Hindi. All the believers all over the world
जो सारे के सारे विश्वासी लोग हैं पूरे दुनिया में, They are also called church उनको भी चर्च कहा जाता है, because they believe in Jesus. क्योंकि वो सभी यीशु में विश्वास करते हैं। But we cannot come together and have fellowship like लेकिन हम this. साथ में तो इकट्ठे आके साथ में संगति नहीं कर सकते। So we have a bigger church. तो हमारी एक बड़ी चर्च होती है। You go east, you go to east, you go to west, आप पूरब में जाएं या पश्चिम में जाएं, you go to north, you go to south. आप उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं, You will find believers आपको विश्वासी वहां भी मिलेंगे and you will be so close to them और आप उनके बहुत करीब महसूस करेंगे, because you are of the same family क्योंकि आप सब एक ही परिवार के हिस्से हैं, of the body of Christ. क्योंकि आप सभी यीशु के शरीर का हिस्सा हैं। Another church एक और चर्च, is called local church. उसको लोकल चर्च कहा जाता है। Now Jesus is interested in universal church, यीशु जो यूनिवर्सल चर्च में मतलब दुनिया के चर्च में वो रुचि नहीं रखते, but he is also more interested in this local लेकिन church. वो लोकल चर्च में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। He does wonders among the local church members. उन्होंने लोकल चर्च के लोगों के बीच में बहुत सारे चमत्कार किए। When the church started in early days, जब शुरुआत में चर्च की शुरुआत हुई, the church started at home. वो घरों में शुरुआत हुई। Those who believe in Jesus Christ, जो लोग यीशु में विश्वास रखते थे, they come together, वो साथ में आते थे, they eat together, साथ में खाते थे, they drink together, साथ में पीते थे, they pray together. साथ में प्रार्थना करते थे। But based on what? लेकिन किस पे आधारित होकर? The Bible says, बाइबल बताती है, based on the teaching of the apostles. जो भी चेलों ने पढ़ाया था उस पर निर्धारित होकर। So the foundation of the church is Christ, but also in fact the teaching of the apostles. तो चर्च की नींव वो यीशु तो है, लेकिन यीशु के चेलों की पढ़ाई जाने वाली बातें भी हैं। Now that's a little bit of the church. ये थोड़ा बहुत हमने चर्च के बारे में बताया। When we think about church, जब आप चर्च के बारे में सोचते हैं, you come from Dhaka church, आप ढक्का चर्च से आए, so you think of the building. आप सोचते हैं उस बिल्डिंग के बारे में, इमारत के बारे में। The whole world thinks that the church is all about a building. हर पूरी दुनिया यही सोचती है कि चर्च का मतलब एक इमारत है, But लेकिन Jesus did not come to construct buildings. यीशु इमारतें बनाने नहीं आए थे। That means there may not be a church. तो वो इमारत नहीं है इसका मतलब। The building is a church इमारत चर्च है, when believers are in it. लेकिन तभी जब विश्वासी लोग उसके अंदर बैठे हैं। But if believers are not a part of that building, लेकिन अगर विश्वासी उस इमारत का हिस्सा नहीं, it is just a mere building. तो सिर्फ एक वो इमारत है, It is not a church. वो कलीसिया नहीं हुए। The word church, जो चर्च शब्द है, ecclesia, now let's Like go back ecclesia. to the original. जो Ecclesia means जो कलीसिया का मतलब क्या है the assembly कि एक झुंड of the call out people. उन लोगों को जो उनको बुलाहट है, Call out people. जो उनको बुलाया गया है। During the early days, शुरुआती के दिन में this is the practice of the Greek people. जो ग्रीक के लोग हैं, यूनानी लोग ऐसा किया करते थे। They come together, वो साथ में आते थे, only the citizens. वही लोग जो आगे नागरिक थे। Those who are not citizens जो नागरिक नहीं थे, are not allowed. उनको आना अलाउड नहीं था। So like only Rehoboth come together. जैसे कि सिर्फ रेहोबोथ चर्च के ही लोग यहाँ आए हैं, Of course we welcome foreigners also. लेकिन हम बाहर के लोगों को भी स्वागत करते हैं, Those who want to believe in Jesus. जो विश्वास करना चाहते हैं Those यीशु who में, want to take water baptism. जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, We welcome them. हम उनका भी स्वागत करते हैं। But ecclesia is a community. लेकिन कलीसिया एक झुंड है, That's why you know each other very well. और इसीलिए उस झुंड में हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। That's why you love each other very well. तो इसीलिए आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं इतने अच्छे तरह से। It is a community. वो एक झुंड है। God called all of us to be a community. परमेश्वर ने चाहा कि हम सब एक कम्युनिटी का हिस्सा बने, Then no Christian individual can survive by क्योंकि एक- himself or herself. क्यों? ताकि एक कोई अकेला मसीह अकेला ना रहने पर। Christian has to grow together with one another. परमेश्वर यही चाहते हैं कि एक मसीह मसीहों के साथ बढ़े। If you are a Christian, अगर आप एक मसीह हैं, and if you know how to read Bible, अगर आपको पता है बाइबल पढ़ना, and if you know how to pray, अगर आपको पता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, then say I don't need to come to this church और फिर आप सोचते हैं कि मुझे चर्च में आने की जरूरत नहीं, because I hate that person and I don't like to see that क्योंकि मुझे person. उस आदमी की शक्ल देखना पसंद नहीं, So I'll stay at home. तो मैं तो घर पे रहूंगी, I feel good and better. मुझे घर पे ज्यादा बढ़िया लगता है। That's not a Christian life. वो एक मसीह जीवन नहीं है। Do you know Jesus loves us so much? आपको पता है यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं? How many of you know Jesus loves you? कितने लोगों को पता है कि यीशु हमसे प्यार करते हैं?
धन्यवाद। अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। That leads me to another question. एक और प्रश्न पूछते हैं, Why would Jesus love you? क्यों यीशु आपसे प्यार करते हैं? How many of you think you are beautiful? कितनों को That's लगता why है कि मैं Jesus बहुत loves you. सुंदर हूँ इसलिए? Carmen says she's beautiful, that's why Jesus loves her. You agree? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सुंदर हैं इसलिए यीशु आपसे प्यार करते हैं? How many of you think Jesus loves you because you're good? कितने लोगों को लगता है कि आप अच्छे हैं इसीलिए यीशु आपसे प्यार करते हैं? अपने हाथों को उठाएं। Okay, I can see one there. एक मिनट, No problem. कोई बात नहीं। How many of you think Jesus loves you because you're ugly? कितने लोगों को लगता है कि आप बदसूरत हैं इसलिए यीशु आपसे प्यार करते हैं? For me, he's handsome. पर हमारे लिए तो वो बहुत स्मार्ट है। I might say I'm handsome. But you say you're ugly. Jesus loves you not because you are beautiful, यीशु आपसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि आप सुंदर हैं, not because you're handsome, ये भी नहीं कि आप हैंडसम हैं इसलिए, not because you're rich, इसलिए भी नहीं कि आप अमीर हैं, not even because you're poor. और इसलिए भी नहीं कि आप गरीब हैं। You're getting me? क्या आपको समझ में आ रहा है? Now another question. अब एक और प्रश्न है आपके लिए, Then why should he love you? तो फिर वो आपसे प्रेम करे क्यों? Because he don't want us to go to hell. Okay, the pastor answered. Yes, pastor's answer. No, pastor's answer. पास्टर ने ये जवाब दिया क्योंकि यीशु नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं। Have you ever thought sometimes, क्या आपने कभी ये सोचा है oh, why would God, wonderful God, loves a sinner like a wretched man like me? कि परमेश्वर जो इतने अद्भुत है, इतने सामर्थ्य से भरे हैं, तो वो इतने मुझ जैसे बेकार व्यक्ति से क्यों प्यार करेंगे? How many of you think sometimes, how can the King of Kings die for me, a sinner? कभी क्या आप में से कोई सोचता है कि परमेश्वर राजाओं के राजा क्यों मुझ जैसे पापी के लिए मरेंगे? Can I see your hand? Why God loves me? क्यों I don't परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं? understand. मुझे समझ नहीं आता वो मुझसे प्यार क्यों करते Anybody हैं? like that in your life? Yeah? Why God will love me? क्यों परमेश्वर मुझसे प्यार करेंगे? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। There's nothing wrong in that. इसमें कोई बुराई तो नहीं। I want you to know the reason why Jesus loves you. That's why I'm asking this question. हम चाहते हैं कि आप सोचें कि क्यों यीशु आपसे प्यार करते हैं और इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। Otherwise, this foundation day would not make any sense to you. नहीं तो ये फाउंडेशन का कोई अर्थ नहीं हमारे लिए आज। You understand this truth and go back as a happy person. You understand this truth? अगर आप इस समझ जाए इस सत्य को, Go back from this place तो आप इस जगह से बाहर जाएं as a happy person. एक अच्छे और खुशी इंसान की तरह। I know you're always a happy person, हमें पता है हमेशा ही खुश रहते हैं, but your happiness will be more. लेकिन आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। Why would God? We also sing in the songs. अभी जैसे हमने एक भजन भी गाया, We song in hymns. हमने हिम गाए That I don't understand why God, Jesus would give his life for me. कि मुझे समझ नहीं आता कि यीशु क्यों मेरे लिए अपना जीवन दे देंगे। Yeah. You never thought like that? क्या आपको ऐसा नहीं लगता That why would Jesus love me? कि यीशु क्यों मुझसे प्यार करते हैं? You never thought? क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? Oh, In his nature is good. sorry. In the nature of God, he is good. परमेश्वर स्वभाव में ही अच्छे हैं। Almost, but you still missed वो कह रहे हैं आपने सही जवाब दिया लेकिन थोड़ा सा कुछ रह गया। by a little, a bit of nail, little distance. God is good. परमेश्वर भले You हैं। were shouting all the time, all हमेशा the बोलते हैं time. कि God is परमेश्वर भले good. हैं हमेशा और हमेशा। Not only in this church, wherever I go, Pastor Thomas also loves shouting that. हमारे पास्टर थॉमस भी हमेशा ये बोलना चाहते हैं और सिर्फ His first remark in the church. वो पहली चीज जो बोलते हैं चर्च में God is good. कि परमेश्वर भले हैं Congregation will shout all the और time. सब बोलेंगे all the time हर समय He will shout them back all the time. और फिर वो बोलेंगे हर समय They will say, God is और वो good. बोलेंगे परमेश्वर भले हैं I think Pastor Rocky also does that. और पास्टर रॉकी भी ऐसे ही करते हैं God is good. कि परमेश्वर भले हैं।
But He's not only good. पर वो सिर्फ भले नहीं है। What does the Bible say? Quick, quick, quick. बाइबल क्या कहती है, जल्दी बताएं। God is. परमेश्वर क्या है? Fill up the blank. ब्लैंक भरे, नेक्स्ट सालों की पूर्ति करें। My kids know. इनके बच्चों को पता है, Because I always tell them. क्योंकि हमेशा उन्हें सिखाते रहते हैं God loves you so कि much. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Not because you're good. इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, Not because you're bad. इसलिए भी नहीं कि आप बुरे हैं। God's love doesn't depend upon you. परमेश्वर का प्रेम आपके स्वभाव पे निर्धारित नहीं God's है, love does not depend upon you. वो आप पर निर्धारित नहीं है कि आप कैसे हैं। God loves us परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं because क्योंकि God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Ah, so simple, कितना Pastor. आसान था। So simple, Pastor. Amen. Sorry, I didn't know the simple answer. Yes, we don't know that things. कितना साधारण सा जवाब था इस चीज का See, God is good all the time, कि परमेश्वर हमेशा भले हैं, but God is love all the time as लेकिन well. परमेश्वर प्रेम है हर समय भी। Amen. I love this notebook, इनको ये नोटबुक पसंद है, not because it's yellow, इसलिए नहीं कि येलो कलर की है, not because this is white. ये नहीं कि सफेद है। I love this book इनको ये किताब इसलिए पसंद है because I am a writer. क्योंकि इन्हें लिखना पसंद है। It does not depend upon the book. ये नोटबुक कैसी है उसमें फर्क नहीं पड़ता। If I pick up another notebook, अगर ये कोई और किताब भी उठा I ले, will love the same. उनको फिर भी वो उतनी ही पसंद आएगी। Not because of the book, इसलिए नहीं कि किताब अच्छी या बुरी है, because I am a writer. क्योंकि इन्हें लिखना पसंद है। I need a pen. इन्हें पेन की जरूरत I है, love pen इन्हें पेन बहुत पसंद है, because I am a writer. क्योंकि इन्हें लिखना पसंद है। Whether it's a ball pen, gel pen, चाहे वो बॉल पेन हो, जेल पेन हो, लाल पेन हो, काला पेन हो, कोई भी पेन हो, blank pen, well, it doesn't matter. इससे कोई Now फर्क- I'm interpreting now. You got the point? आपको समझ में आया? God loves us not because of the way we look. परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि जैसे हम लगते हैं इसकी वजह से। Sometimes you will not understand how God loves a sinner. कभी-कभी आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर एक पापी से कैसे प्रेम करते हैं। Stop thinking about the sinner. भूल जाए पापी के बारे में सोचें। God has to love परमेश्वर उसको प्रेम करना ही है, because God is love. क्योंकि वो खुद ही प्रेम है। Because God cannot give His love. क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम दे नहीं सकते, God cannot give His love. वो अपना प्रेम नहीं दे सकते। When He gives His love, अगर वो अपना प्रेम देते हैं, He gives Himself. वो अपने आप को ही दे देते हैं। When God gave Himself on the cross, जब यीशु ने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए दे He दिया, showed His love उन्होंने there. अपने प्रेम को दिखाया इस क्रूस पर For God so loved the कि world परमेश्वर ने पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया that He gave कि Himself. अपने इकलौते बेटे को दे दिया। Don't ever think God gives His love for you. आप ये ना सोचे परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया, नहीं. उन्होंने अपने आप को ही दे दिया। I can give my love for somebody, मैं अपना प्रेम किसी को दे सकती हूँ, but God is not, लेकिन परमेश्वर नहीं, because God is love. क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। But love is not God. लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है, Love is not God. प्रेम परमेश्वर नहीं। The Bible never teaches that. बाइबल कभी ये नहीं सिखाती, But God is love. लेकिन परमेश्वर प्रेम है। Why love is not God? क्यों प्रेम परमेश्वर नहीं है? Because the love that we think is love is not love. क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं कि प्रेम और प्यार है, वो प्यार है ही नहीं। That's why love cannot be God. इसीलिए प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता। But when you accept God into your lives, लेकिन जब परमेश्वर को अपने जीवन में अपना लेते हैं, God comes not alone but with His love. लेकिन परमेश्वर फिर आपके जीवन में अकेले नहीं, लेकिन प्रेम के साथ आते And हैं। now you can say love is also God there. और इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रेम परमेश्वर भी है उस जगह पर। The Bible says, बाइबल बताती है, if you don't love your brothers, अगर आप अपने भाइयों से प्यार नहीं करते, if you don't love your brothers, अपने भाई से प्रेम नहीं करते, you don't know God. आपको परमेश्वर नहीं पता कि कौन है, Because God and His love cannot be separated. क्योंकि परमेश्वर और उनका प्रेम अलग अलग नहीं किया जा सकता। So how do I know that you love, or how do I know you have God in you? तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में परमेश्वर Only है? when I see your true love for your neighbors. जब हम आपका सच्चा प्रेम आपके पड़ोसियों के लिए देखेंगे। I'll tell you one incident. एक चीज बताना चाहते हैं, Easter morning,
कि ईस्टर के दिन सुबह के Just समय, last Sunday, अभी रविवार को my wife got up, इनकी बीवी सुबह उठी, she went down, उस नीचे गई, and then we put a few syntax on the ground. कुछ सिंटेक्स जमीन पे लगाया, All the syntax lids were stolen away. वो सब चुरा ली गई थी। They could not lift up the big syntax. वो बड़ा सिंटेक्स नहीं उठा पाई, They could open the lids, वो खोल सकती थी उसे, the lids, जो लीड्स होती है, the cover जो है, जो कवर होता है, ढक्कन। वो इंग्लिश बोलती है तो मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ। Yes. सही है. मैं सोचा मैं इंग्लिश बोलूंगा और वो हिंदी बोलेंगे। ये कभी-कभी करना लगता है। मैं हिंदी बोलूंगा। So we found out that the syntax leads were stolen away. तो हमने देखा कि सिंटेक्स तो वहाँ से चुराया गया था। I was very तो angry, इन्हें बहुत गुस्सा आया, very angry. बहुत गुस्सा आया। How dare could these people steal my syntax cover? कोई कैसे इस ढक्कन को चुरा सकता है मेरे घर से? Very angry. कौन है? I will not preach the gospel to Indians anymore. अब मैं भारतीय लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा ही नहीं, ये बहुत बुरे होते हैं। I'm also Indian anyway. पर वैसे ये भी भारतीय हैं। Then I read again in the Bible. तब इन्होंने दोबारा बाइबल खोले और उसमें पढ़ा Jesus was just nailed on the cross. कि यीशु को क्रूस पे कीलें गाड़ दी गई, His hand was nailed. उनके हाथों में कीलें गाड़ दी गई, His feet were nailed. उनके पैरों में कीलें गाड़ दी गई, And people were nailed. Jesus was looking down. और यीशु सिर्फ नीचे देख रहे थे जमीन की ओर। He did not get angry. उन्हें तो गुस्सा नहीं आया, I was angry for syntax lead. ये ढक्कन के लिए गुस्सा हो रहे थे। Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा Father, कि पिता, it's not about me. ये मेरे बारे में नहीं है, It's about these people. ये लोगों के बारे में है। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, Forgive them for killing me. इन्हें माफ कर दो कि ये मुझे मार रहे हैं। I was angry for syntax lead. ये ढक्कन के लिए रो रहे थे। Jesus said, forgive them for crucifying me. यीशु कहते हैं कि मुझे मारने के लिए भी माफ कर दो। Friends, मेरे दोस्तों, that is love. वही प्रेम है। Let's decide not to get angry with our neighbors. तो इसलिए आज निर्णय लें कि अपने पड़ोसियों के साथ आप गुस्सा नहीं करेंगे। If they hurt you, अगर वो आपको दुख देते हैं, they are not crucifying you. वो आपको क्रूस पे तो नहीं चढ़ा रहे कम से कम। But Jesus said they don't know what they are doing. लेकिन यीशु ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। You think they know and they are hurting you. आपको लगता है कि उन्हें पता है और जानबूझ के वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। But if they knew, in fact, they wouldn't hurt you. लेकिन अगर उन्हें पता होता तो शायद वो आपको दुख नहीं पहुंचाते। Change the way we think. तो जिस तरह से हम सोचते हैं उसको बदल दें। Change the way we think. जिस तरह से हम सोचते हैं उसको बदलें। Please change the way you think too. जिस तरह से आप सोचते हैं उसको भी बदलें। That is called repentance. उसी को कहते हैं पछतावा करना। The first word Jesus used जो पहला शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया था, when he proclaimed his first message. जब पहला संदेश उन्होंने दिया था लोगों को, Repent. उन्होंने बोला कि पछतावा करो, Change your thinking. अपनी सोच बदल दो, Because the kingdom of God is at hand. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। Why Jesus spoke that first word repent? क्यों यीशु ने वो पहला शब्द पछतावा इस्तेमाल किया? It's so close in his heart. क्योंकि वो पछतावा शब्द उनके दिल के बहुत करीब था। Can we do that? क्या हम वो कर सकते हैं? If we call ourselves as believers in Christ, अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के विश्वासी कहते हैं, we love them तो हम उनसे प्रेम करें, because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। Don't say, परमेश्वर ने कहा, don't say, ये ना कहें Lord, I love कि you. परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, Give me love to love that person. Give me love. मुझे to प्यार love दे, that प्यार person. दे ताकि मैं उससे भी प्रेम करने पाऊँ। No, no, no. ऐसा ना बोले। Christians, मसीह लोगों, when they believe in God, जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, God comes into the heart. तो परमेश्वर आपके दिल में आ जाते हैं God comes with love. और वो प्रेम के साथ आते हैं, And we love. और उस प्रेम के साथ
This is called church. इसे कलीसिया कहा गया है। People whose heart are filled with the love of God. जिनके दिल परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं। They are called church, not the building. ये इमारत नहीं, लेकिन ये लोग। Not the building, इमारत नहीं, but the people. लेकिन लोग। I want you to get that. आप समझ जाए इस चीज को। When Jesus said जब यीशु ने कहा in Matthew chapter 18 verse 20, मत्ती के सुसमाचार 18वें अध्याय में, for where 2 or 3 are gathered together जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं in my name, मेरे नाम में, there am I वहाँ पर मैं होता हूँ in the midst of them. उनके बीच में। That's the word, gathered together. जहाँ पे लिखा है इकट्ठा होते हैं, For where 2 or 3 are gathered together, जहाँ भी 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, gathered together, इकट्ठे होते हैं साथ में, ecclesia, कलीसिया बनती है। ecclesia. उसी को कलीसिया कहा जाता है। That's the meaning of the church. तो वही चर्च का, कलीसिया का अर्थ है। But the word the church is not used here, लेकिन वो चर्च शब्द बाइबल में इस्तेमाल नहीं हुआ, but it gives us the meaning लेकिन वो अर्थ हमें समझाता है कि क्या होता है of ecclesia. कलीसिया का। The word church is used in the Bible जो चर्च शब्द का इस्तेमाल बाइबल में हुआ है because of King James. क्योंकि वो जो किंग जेम्स वर्जन है, इसकी वजह से। King James said, किंग जेम्स ने कहा if you want to translate Bible into English, अगर आपको बाइबल इंग्लिश में कन्वर्ट करनी there है, are ट्रांसलेट करनी है, 15 things that you have to follow. तो 15 चीजों को आपका नियम का पालन करना पड़ेगा। In point number 3, तीसरे पॉइंट में उसने कहा, the king says, राजा ने कहा, you cannot change the word church. आपको चर्च शब्द को बदलना है। Actually, it was used as a congregation or assembly, पहले उसको झुंड कहा गया था, but the king said, लेकिन राजा ने कहा no change of word. कोई शब्द नहीं बदला जाएगा। Congregation should not be used. कांग्रीगेशन झुंड शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, Assembly should not be used. असेंबली शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, You have to use the word church. आपको चर्च शब्द का इस्तेमाल करना है। That's why it is written. और इसीलिए इंग्लिश बाइबल में चर्च शब्द इस्तेमाल हुआ है। Jesus never spoke the word church. यीशु ने कभी अपने जीवन में चर्च शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। He always said, people gather in my वो name. हमेशा कहते हैं, जब ये मेरे नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, People gather in my name. जहाँ पर भी लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। When Jesus said church, जब यीशु ने कहा चर्च, he cannot connect with his love वो अपने fully. प्रेम से जोड़ नहीं पा रहे थे उन लोगों को चर्च शब्द के माध्यम से। But if he says, बट अगर उन्होंने कहा होता people gather together in my कि name, जहाँ पर भी लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते so हैं, close to his heart. कितना उनके दिल के करीब आते हैं ये That's शब्द। why Jesus called it, get together in my name. इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे नाम से इकट्ठा हो जाओ, Congregation, झुंड बनाओ, ecclesiastes, कलीसिया बनाओ। assembly. You got something today? आज आपको कुछ समझ में आया? Yes. Yes. The Bible also says बाइबल और ये बताती है that we are the temple of God. कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। We are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर हैं। If you go to any temple in Delhi, अगर आप दिल्ली में किसी भी मंदिर में जाएं, you will find idol in that temple. तो आपको उस मंदिर में मूर्ति मिलेगी। That means that temple is where idols stay. इसका मतलब वो मंदिर है जहाँ पे मूर्तियाँ रहती है। We know that's not a true God. हमें पता है कि वो असली परमेश्वर है ही नहीं, Those are made by hand. क्योंकि उन सबको तो हाथों से बनाया गया है। Any wonder you know who can make God for himself by his own hand? आप जानते हो कि कई लोगों को जो अपने हाथों से परमेश्वर को बनाते हैं, Impossible. कोई भी नहीं बना सकता। You cannot make God with your hand. आप परमेश्वर को कभी भी अपने हाथों से नहीं बना सकते, We are God's handiwork. क्योंकि हमें हाथों से बनाया गया है। We are made by God. हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। That is the temple of that God. वही परमेश्वर का मंदिर है। In the same way, इसी तरह से when we believe in जब हम Christ, यीशु में विश्वास करते हैं, on God and only God, Jesus alone, सिर्फ यीशु में विश्वास करते हैं, lives and occupies this place. वो आते हैं हमारे शरीर में जगह ले लेते हैं, That is why और इसीलिए you and I, आप और मैं, we are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर हैं। Amen. If somebody comes, 30% comes closer to the temple, अगर कोई गंदा इंसान मंदिर के पास में आता है, the priest would come and say, go there. तो Go there. पंडित ने कहा हट जाओ यहाँ से चले जाओ। If dirty thing comes into our अगर lives, कोई गंदी चीज हमारे जीवन के पास आती है, we say, no, no. तो हमें क्या कहना है? नहीं नहीं, दूर हो जाओ।
This is the temple of God. क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, This is the temple of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। We have to sweep the temple of God. जैसे हमें परमेश्वर के मंदिर की सफाई करनी To पड़ती keep है, clean. झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है साफ करने के लिए, Sometimes we have to put कई water. बार तो पानी भी डालना पड़ता है, Sometimes we have to put some broom. कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है। How do you clean the temple of God? आप परमेश्वर के मंदिर को कैसे साफ करते हैं? I'm talking about how do you clean yourself. आप कैसे अपने आप को साफ करते हैं? Not by shouting hallelujah 100 times a 100 day. बार दिन में हालेलुया चिल्लाकर नहीं, How do you clean yourself? कैसे अपने आप को साफ करते हैं? By reading God's word. परमेश्वर का वचन पढ़कर। The Bible बाइबल says बताती है Jesus' word is water. कि यीशु के शब्द पानी के समान है। If you drink the clean water, अगर आप उस साफ पानी को पी you're लें, healthy. आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। If you drink dirty water, अगर आप गंदा पानी पिएंगे you get infection. तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। If you don't clean, अगर आप साफ नहीं you करेंगे get infected. तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे What आप। is this infection? क्या इन्फेक्शन आ It's जाएगा? sin. पाप। Sometimes we get angry. कई बार हमें गुस्सा आता है। Yeah. Anyone who never gets angry. कोई है यहाँ जिसे कभी गुस्सा नहीं आता? I see that I never get angry. Now the father is nervous. Father is not happy now. उस बच्चे के पिता खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, मालूम नहीं है। Maybe true. She never gets angry. हो सकता है सच हो उसे कभी गुस्सा ना आता हो, The brother is saying no. लेकिन भाई कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। Then how do you remove that anger? तो उस गुस्से को कैसे निकालना है? By reading God's word. परमेश्वर का वचन पढ़कर। Know for yourself. आपको पता होना चाहिए अपने लिए ये बात। If the house is dirty, अगर घर गंदा है it's time to sweep. तो समय है सफाई का। But you cannot expect the house to be clean all the time. आप ये नहीं सोचते घर हमेशा ही साफ रहेगा। We live nearby the road here. हम जैसे इस रोड के साथ में रहते हैं, We clean the floor at least twice a day. दिन में 2 बार तो घर की सफाई करते हैं। Morning cleaning is not enough for evening. सुबह की सफाई, शाम की सफाई करनी पड़ती है, 2 We टाइम have to clean. सफाई करनी पड़ती है। Christian life is also same. ऐसे ही मसीह जीवन की भी सफाई करनी पड़ती है। If you clean in the morning, अगर आप सुबह सफाई कर रहे हैं, if you don't clean in the evening, अगर आप शाम को सफाई नहीं करेंगे you get angry. तो फिर गुस्सा आ जाएगा। But if you keep cleaning morning, evening, लेकिन आप midnight, सुबह, शाम, रात को, दोपहर को क्लीन करते रहेंगे, then you'll be singing hallelujah all the time. तब हर समय ही हालेलुया गाते रहेंगे। People will see what is happening to this neighbor of mine. लोग कहेंगे मेरे पड़ोसी को क्या हो गया ये? I tell you the secret. आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। You share the good news of और अब Jesus. सुसमाचार को बांटेंगे। That is the mission of the church. और वही कलीसिया का मकसद होना चाहिए Witnessing about Jesus. कि यीशु के लिए गवाहियाँ दें। You learn something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Is God talking to your heart? क्या परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहे हैं आज? When you become a Christian, जब एक मसीहा बन जाते हैं, this is very interesting. ये बहुत ज्यादा रुचि वाला है। When you were born in America, जब अमेरिका में आपका जन्म हुआ, you become an American citizen. तो आप अमेरिका के नागरिक बनते हैं। Pastor Rocky was in US. पास्टर रॉकी यूएस में थे। He did his Bible studies from US. उन्होंने अपनी पढ़ाई यूएस से करी। Big man. He has a son, maybe 2 sons. उनके 2 बेटे हैं। They're Americans. वो अमेरिका के नागरिक हैं। Father is Indian. उनके पिता तो भारतीय हैं। Sons are American. बेटे अमेरिका के नागरिक हैं। Why? क्यों? Father did not born in America. क्योंकि पिता का जन्म अमेरिका में नहीं He हुआ। was born in Manipur. इनका तो मणिपुर में हुआ था। मणिपुर का नाम सुना? Not in English. Have you heard of the name of Manipur? नहीं ना? No, you haven't heard of. You heard about Manipur? क्या आपने मणिपुर के बारे में सुना है? Pastor Kamai is also from Manipur. पास्टर कमई भी मणिपुर से है। But his sons were from US. और उनके बच्चे, उनके बेटे अमेरिका से हैं। I think Americans still think that these two are Americans. तो अमेरिका के लोगों को लगता है कि वो अमेरिका के नागरिक हैं। Citizenship is very important.
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Even if the father thinks that they are Indian, अगर उनके पिता को लगता है कि वो भारतीय है, American will come looking because they have a record of their birth in लेकिन US. अमेरिका के लोग आएंगे, सरकार कहेगी कि नहीं ये तो अमेरिका के नागरिक हैं। How important it is for America, a citizen in America. कि अमेरिका के लोगों के लिए, सरकार के लिए अमेरिका का नागरिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। That's why everybody wants American citizenship. इसलिए हर कोई चाहता है कि वहाँ की नागरिकता मिल जाए। Nobody wants Indian citizenship. कोई भी भारतीय नागरिकता नहीं चाहता। I want. Don't they lie? I'm proud to be an Indian. You see, आप देखें huge difference between American citizenship and Indian citizenship. कितना ज्यादा फर्क है भारतीय नागरिकता में और अमेरिका की नागरिकता में। If one Indian dies in US, अगर कोई भारतीय अमेरिका में यूएस में मर जाए Prime Minister, who cares? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। Prime Minister will not think anything of you. वो कुछ नहीं सोचेगा आपके बारे में, You're not that important. क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने महत्वपूर्ण तो नहीं। India has got more than 1 billion and 30 crore people. And we were just भारत में तो one. 1 बिलियन 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, आप तो एक ही इंसान मरे, क्या फर्क पड़ जाएगा। But for America, it's not. लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। Once you become a citizen of अगर आप US, अमेरिका के, अगर आप नागरिक बन जाए एक बार, they go to the place where you die. तो आप जहाँ पे मरे हैं वो लोग वहाँ जाएंगे, They find out the reason why वो you died. ढूंढेंगे क्यों आप किसी और देश में मर गए, If somebody killed you, क्या किसी ने आपको मारा, they make sure they get the person who killed you और अगर किसी ने मारा उसे पकड़ेंगे and get a punishment there. और उसको सजा देंगे। India never do that. भारत ऐसा कभी नहीं करती। We don't want to be Indian citizens. हमें नागरिक बनना ही नहीं आता। Americans, they do that. अमेरिका वाले बहुत अच्छे हैं, वो करते We हैं। want to be American citizens. हमें भी अमेरिका के नागरिक But बनना है, I'm talking about a citizenship that is better than American. लेकिन हम एक नागरिकता की बात कर रहे हैं जो अमेरिका की नागरिकता से कहीं बढ़कर है। Our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। Amen. You don't get me. आपको समझ नहीं आया। If anything in this world touches you, अगर कोई भी चीज इस जीवन में आपको छूती है, Jesus will not let that person go free. यीशु कभी भी उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। If your family rejects you, अगर आपका परिवार आपको नकार देता है, Jesus will come running for you. यीशु आएंगे भागते हुए आपके पास। If you are in difficulties, अगर आप परेशानी में हैं, you are His citizenship यीशु आपको नागरिकता देते हैं of स्वर्ग His में, kingdom. अपने राज्य की। He will come running for वो you. आएंगे भागते हुए आपके पास। In early church, इनके चर्च में, early church, शुरुआत के चर्च में there was one believer. एक विश्वासी था। He preached the gospel. People don't like वो him. लोगों को सुसमाचार सुनाता था, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं करते थे, They stoned him उसे पत्थर मारते थे to death. और उसको मार दिया। But before he died, लेकिन मरने से पहले he looked up उसने ऊपर देखा, and saw Jesus standing. उसने यीशु को देखा वहाँ खड़े हुए। For example, जैसे एक उदाहरण देते हैं, you're sitting in this room. जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं, If somebody comes in, कोई आता है यहाँ से, if somebody comes in, अगर आता है very important person, बहुत जरूरी इंसान, what will you do? आप क्या करेंगे? If Prime Minister comes in, अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री आ जाए, will you sit or will you stand? क्या बैठे रहेंगे या खड़े हो जाएंगे? क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, Because he is a very important क्योंकि person. वो एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। You cannot sit. आप बैठे बैठे नहीं रह सकते। Each one of you are very important. Is हर important. कोई बहुत महत्वपूर्ण है आप में से। Jesus cannot sit quietly if you are touched. अगर आपको कोई छू लेगा इस दुनिया में, तो यीशु चुपचाप नहीं बैठ सकता। When Stephen was being stoned to जब death, स्टीफन को मारा गया था, पत्थर मार दिया था, Jesus before that he was sitting with God in his throne. यीशु पहले परमेश्वर की दाहिनी ओर उनके राज्य में बैठे The हुए थे। moment that happens, जैसे ही स्टीफन को पत्थर मारे he गए, stood up. यीशु खड़े हो गए। That is the only Bible portion where we say Jesus stood in heaven. सिर्फ बाइबल में एक ही वचन है जहाँ बताया जाता है कि यीशु खड़े हो गए। Otherwise, Jesus was sitting all the time in the right side of the Father. लेकिन हमेशा हम ये बात करते हैं कि यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। If anything happens to you, अगर कोई भी चीज आपके जीवन में होती है, know याद करें, you are a citizen of heaven. आप स्वर्ग के निवासी हैं। Jesus will come running for you. यीशु आएंगे, आप भागते हुए आपको बचाएंगे। That is why even the Bible इसलिए says बाइबल बताती है, in 1 Peter पहले पत्रस chapter 2 दूसरे अध्याय verse 9. 9वें वचन में What does it say? Let's read. क्या बाइबल बताती है, पढ़े।
are a chosen generation, कि तुम चुनी हुई पीढ़ी हो, chosen by God, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, royal priesthood, कि तुम बड़े राज्य के निवासी हो and holy nation. और पवित्र देश हो। His own special people, God's own special कि people, परमेश्वर के खुद के विशेष लोग that you may proclaim जो कह सके the praises of God परमेश्वर की आराधना, who calls you जिसने आपको बुलाया out of darkness into His marvelous, अंधेरे से रोशनी में, into marvelous light. एक बहुत बड़ी रोशनी में। If you have not accepted Jesus, अगर आपने यीशु को अपनाया नहीं है you are in darkness. और आप अंधेरे में हैं, You will not know anything what is going on in your life. आपको नहीं पता चलेगा आपके जीवन में क्या हो रहा है। If the light is gone in this room, अगर इस कमरे में लाइट चली जाए, you will not know who is where. आपको नहीं पता कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। But the light and the darkness cannot stay together. लेकिन रोशनी और अंधेरा कभी साथ में नहीं रह The सकता। moment when the light gone, जैसे लाइट चली जाएगी, the darkness appears. अंधेरा आ जाए। But the darkness cannot dispel the light. लेकिन अंधेरा कभी रोशनी को भगा नहीं सकता, But the light dispels darkness. लेकिन रोशनी अंधेरे को भगा सकती है। So when Jesus comes तो जब यीशु आते हैं into our lives, हमारे जीवन में, He gives us the meaning of our वो life. हमें हमारे जीवन का अर्थ समझाते हैं। Now, और अब I have so many things to say, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, but I will just say maybe one thing and I'll लेकिन close. एक ही चीज बताएंगे और फिर समाप्त करेंगे। The first thing I was telling you was about the church, जो पहली चीज हमने आपको बताया कलीसिया के बारे में, and especially the word church in the और जो Bible, चर्च के शब्द के बारे में बाइबल में, and the universal church and local church, और जो यूनिवर्सल चर्च और लोकल चर्च के बारे में, and God loves the local कि church, परमेश्वर लोकल चर्च से प्रेम करते हैं, and God loves the local church because, not because they are good or beautiful. और लोकल चर्च से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो सुंदर है बहुत ज्यादा। Jesus loves us because He is love. परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि परमेश्वर खुद प्रेम है। हम उस कहानी की बात कर रहे हैं जब मरियम और मार्था परमेश्वर के लिए भोजन बना रही थी, और मरियम परमेश्वर के पैरों में बैठी थी और मार्था रसोई में उनके लिए खाना बना रही थी। Yes, Jesus visited them. यीशु उनके घर गए उनसे मिलने। I think there is in Luke. Mary was busy cooking for them. जो Martha was busy cooking for them. मार्था रसोई में खाना बना रही थी उनके लिए, And then Jesus was teaching His word in His house. और यीशु अपना शब्द उन्हें सुना रहे थे वहां पर, And then Mary was listening like a dry ground receiving water. और मरियम पर यीशु के शब्दों को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई सूखी धरती के ऊपर पानी पड़ रहा हो। And then Martha realized that nobody helped her. और मार्था बोल रही थी कि कोई तो मेरी मदद नहीं कर रहा रसोई में खाना बनाने में, And then she was little और उसे unhappy. अच्छा नहीं लगा था उसे, And she came to the Lord. और वो यीशु के पास आई And then she said, और उसने कहा, look at Mary, Lord Jesus, she's not even thinking of helping me. यीशु देखो मरियम को मेरी मदद भी नहीं करने आ रही है रसोई में, मैं खाना बना रही हूँ अकेले। Now listen to what Jesus और said. ध्यान से सुने कि यीशु ने क्या कहा। Jesus said to Martha, यीशु ने कहा मार्था से Martha, कि मार्था, you are worried about so many कि things. तुम परेशान हो बहुत सारी चीजों को लेकर, All what you need to do is just one thing. तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करने की जरूरत है। You don't have to do so many things. आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, You just have to do one सिर्फ एक thing. ही चीज करनी है, And then Mary has got it. और वो मरियम ने कर लिया। I will leave you with His wisdom. हम आपको परमेश्वर की समझ के साथ छोड़ते हैं। God has a purpose परमेश्वर के पास एक मकसद है for this Rehoboth. इस रेहोबोत कलीसिया के लिए, But लेकिन we cannot do many things. हम बहुत सारी चीजें शायद नहीं कर सकते। God has started this local church परमेश्वर इस लोकल कलीसिया को शुरुआत की to do one thing. एक चीज करने के We लिए, have to find it out together. और हमें उस साथ में मिलकर ढूंढनी है। We will keep loving one another. हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें, And whoever has the desire to know और this love that we have for one another, और किसी के अंदर भी अगर इच्छा है इस प्रेम को जानने की जो हमारे अंदर है, then we will keep sharing तो हम them. परमेश्वर का सुसमाचार उसे बांटते रहेंगे, And then this church will keep growing. और फिर ये कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। Amen. When people come, जब लोग आएंगे, what will also come? Their wealth also will come. वो आएंगे, उनका पैसा भी उनके साथ आएगा, They will come with everything that they have. उनके पास जो कुछ होगा, परिवार होगा, जो होगा, सबके साथ आएंगे।
This is my prayer ये हमारी प्रार्थना है that this church will continue to worship God. कि ये कलीसिया परमेश्वर की आराधना करती रहेगी। Amen. Three things. 3 चीजें, Continue to worship God. परमेश्वर की आराधना करते रहे। When do you worship God? कब परमेश्वर की आराधना करें? When you receive God's grace overflowing your life. जब परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में आप उमड़ता हुआ देखें, In response to God's grace, कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता रहे, you begin to worship God. आप परमेश्वर की आराधना करें। You worship God because of His revelation to you. परमेश्वर की आराधना इसलिए करें अपने प्रकाशन की वजह से। If there is no revelation, अगर परमेश्वर ने प्रकाशन नहीं दिया, you cannot worship God at all. आप परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं You सकते। will be dry. आप सूखे पड़ जाएंगे। You sit inside the church. आप कलीसिया में बैठे तो होंगे, You can't worship. आप फिर भी आराधना नहीं कर पाएंगे। You sing and you yawn. आप आराधना कर रहे होंगे, साथ साथ उबासी ले रहे होंगे, फिर आप ऐसे कर रहे हो। Where there is no revelation, क्योंकि जहाँ पर प्रकाशन नहीं है, no true worship, वहाँ पर आराधना नहीं no होगी, true excitement. कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। When you know Jesus, जब आपको यीशु पता होंगे, you know why you're singing, आपको पता है कि हम प्रार्थना क्यों कर you रहे know हैं, why you're praying. आपको पता है प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, No yawning. कोई उबासी ही नहीं आएगी। I had a friend इनका एक दोस्त है, during our college इनके days. कॉलेज के समय में There was also another friend who didn't believe in एक Christ. और दोस्त था जो यीशु में विश्वास नहीं करता था, And then he was with us and we all started praying. और ये उनके साथ में आए और साथ में प्रार्थना करने लगे। So all the Christians, they started closing their eyes and started praying. सारे मसीह लोगों ने आंखें बंद कर प्रार्थना करनी शुरू करी। But this friend was not a believer, so he was observing when we were closing our eyes and praying. तो वो इंसान जो विश्वासी नहीं था, वो इसमें देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। So one friend of mine तो एक दोस्त ने started, thank you Jesus. उसने बोला थैंक यू जीसस और उबासी लेनी शुरू कर। Again. Many times. बहुत बार, Many times. बहुत बार, Not only times. एक बार नहीं कई बार। After the prayer, प्रार्थना के बाद this friend asked me, इस दोस्त ने मुझसे पूछा, is it compulsory for Christians to yawn when they pray? क्या मसीह लोगों के लिए जरूरी है कि प्रार्थना करते हुए उबासी लेनी चाहिए? The world is observing people. क्योंकि दुनिया आप पे नजर रख रही है। Yes. Where there is revelation कहाँ पर प्रकाशन है? of Jesus, यीशु का, there is excitement. वहीं पर एक्साइटमेंट है। I'm not distracted by that. उस बलून के फूटने से परेशान ना हो। And then और फिर you encourage one another. आप एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, Pray of healing. प्रार्थना करें चंगाई के लिए, And then get excitement. और सब प्रोत्साहित उत्साहित हो जाएं। Nurture one another. एक दूसरे का ध्यान रखें, Amen. Worship God. परमेश्वर की आराधना करें, Nurture one एक another. दूसरे का ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन बांटें And keep sharing the good news. और परमेश्वर का सुसमाचार बांटते रहें।